એટલે खराब बहुत से साहिब। और ये गांव जो है वो मध्य प्रदेश एमपी में आता है और हमारे गांव के चारों ओर गुजरात है। મારી સાસુમાં લાગે અને બીમાર છે અત્યારે આમાં બાઇક પર સુધી અમે રસ્તા સુધી લીજીએ હાવી સુધી પછી ત્યાં દિયાથી સુધી અત્યારે વાર લાગે ખાડા ખુડીમાં છે ને વધારે ટાઈમ લાગે બાઇક પર જ્યાં કોંગ્રેસ વાળા આવ્યા ભાજપ વાળા આવ્યા હવે બીજી સરકાર આવે છે તે બી આ રોડને કોઈ બનાવવા મંજૂર નથી તો આ એમપીનું હું વચ્ચે ગામડું આવી જોઈએ. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના છેવાડાના વિસ્તારમાં આવેલા ગામોમાં એક એવું ગામ છે સજ્જનપુર. સજ્જનપુરની વાત કરીએ તો અહીં આ ગામ જે છે તેનું સંચાલન મધ્યપ્રદેશ તરફથી કરવામાં આવે છે, પરંતુ અહીંની જે વાત કરવામાં આવે તો સજ્જનપુરની આગળના ભાગમાં બીજા અન્ય ગામો આવેલા છે. તો આ જે સજ્જનપુર જવાનો જે માર્ગ છે તે માર્ગ બિલકુલ ખરાબ હાલતમાં છે અને આ જ માર્ગ પરથી ગુજરાતના બીજા ગામોમાં પણ જઈ શકાય છે, પરંતુ દેશ આઝાદ થયા પછી અહીંના જે રસ્તાઓ છે તે બન્યા નથી, જેને લઈને અહીંના જે લોકો છે તેને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે. અને ખાસ કરીને વાત કરીએ તો ચોમાસા દરમિયાન આ રસ્તાઓ બિલકુલ ખખડધજ હાલતમાં થયા છે, ત્યાં 108 પણ આવી શકતી નથી, જેને લઈને અહીંના જે ગામજનો છે તેઓ ઈચ્છી રહ્યા છે કે જ્યારે ચૂંટણીનો માહોલ છે, નેતાઓ મત માંગવા આવવાના છે, ત્યારે અમારો જે માર્ગ છે તેને વહેલી તકે બનાવી આપવામાં આવે. અમે દિયાવાટના છે. આ દિયાવાટથી 6 કિલોમીટરનો રોડ છે, 6-7 મીટર. તો આ રોડ વર્ષોથી છે, વર્ષોથી કોઈ નેતા આવ્યા કેટલા ચૂંટાઈને જ્યાં કોંગ્રેસ વાળા આવ્યા ભાજપ વાળા આવ્યા હવે બીજી સરકાર આવે છે તે બી આ રોડને કોઈ બનાવવા મંજૂર નથી. તો આ એમપીનું હું વચ્ચે ગામડું આવી જોઈએ, મધ્યપ્રદેશનું એક ગામડું આવી ગયું વચ્ચે, એટલે આપણે આ રસ્તાના કોઈ મુદ્દો બનાવવા રાજુ નહીં થતા. તો અમે વર્ષોથી આ વહેલા કરતા આવીએ પણ કોઈ સરકાર આવે ને પછી ગયા પછી અમે નાના માણસોને ગરીબને કોઈ ઓળખી નહીં શકતા. તમારે દવાખાને જવું તો કેવી રીતના જવું પડે છે? આ દવાખાને અમારે તમે આ રોડ પરથી ગયા બાઇક લઈને એ રીતથી અમારે જવું પડે. ચોમાસામાં શું પરિસ્થિતિ આવે? અમારે એવી રીતે આવે ગાડી પર જવાનું નકર પછી ઉસકીને લઈ જવાનું. આ વર્ષોથી વહેલા કરતા આવે પણ આ બાજુ કોઈ છેલ્લું ગામડું આવી ગયું અમારું એકદમ મધ્યપ્રદેશના બોર્ડર પર આવી ગયું એટલે આ રોડ બનાવવા કોઈ રાજી નહીં થતા. આ છેલ્લું આવી ગયું મધ્યપ્રદેશના બોર્ડર પર જ આવી ગયું કહેવાય. રસ્તામાં શું ગામ આવે? આ 6-7-8 ગામડા પડે અમારા ગુજરાતના. આ ખાલી એક જ ગામડું આ મધ્યપ્રદેશનું એક જ ગામડું છે ને આગળથી આપણા ગુજરાતના પૂરા ગુજરાતના 6-7 ગામડાના વિકાસ થાય આ રોડ પર. मारी को मतलब 108 के ऐसा कुछ तो सुविधा नहीं है ना? हाँ सुविधा नहीं है, बीमार है इसलिए ऐसा लेके जा रहा है. અમારે આ રસ્તાની સમસ્યા છે. આ રસ્તો છે ને જરીક સારો બની જાય તો અમારે જવામાં 5-10 મિનિટમાં અમે નીકળી જઈએ. મારી સાસુમાં લાગે અને બીમાર છે અત્યારે આમાં બાઇક પર સુધી અમે રસ્તા સુધી લીજીએ હાવી સુધી પછી ત્યાં દિયાથી સુધી અત્યારે વાર લાગે ખાડા ખુડીમાં છે ને વધારે ટાઈમ લાગે બાઇક પર. બીમારવાળા મરી જાય ને 5-10 મિનિટમાં બી જવાનું તો મરી જાય. બધા આ ગામમાં કેટલા લગભગ 500 ગામોના આમાં આ રસ્તા પર ચાલે. બધું આવવા જવામાં આ નજીક પડે છે અમારે, બાકી આ ખાડા ખુડીમાં છે ને તકલીફ વધારે પડે છે માણસને કોઈ બી. मैं भारत सिंह भिंडे, ग्राम पंचायत साजनपुर, और ये गांव जो है वो मध्य प्रदेश एमपी में आता है और हमारे गांव के चारों ओर गुजरात है और चारों ओर गुजरात है और यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन का यहाँ पर जो चल रहा है हैंडलिंग चल रहा है, मतलब वो मध्य प्रदेश में आता है गांव. तो इस गांव में ये चारों तरफ गुजरात होने के नाते हमारा गांव में जो सुविधा है सरकार द्वारा दी जाती है, योजना दी जाती है और कुछ कार्य दी जाते हैं वो सही तरीके से होते हैं. और ये हमारा जो मेन समस्या ये है कि हमारे यहाँ रोड जो शुरू से जब से साजनपुर है तो है पुराने ज़माने का ही रोड अभी तक आज तक बनानी है पक्का. आज तक हम कच्चे रोड से आना जाना कर रहे हैं
और इस जो साजनपुर जो गांव में रोड है वो मेन है। उसके आसपास के जो गांव है 10-12 गांव है बहुत सारे जो है वो इसी रास्ते से गुजरते हैं। गुजरात वाले लोग भी आते हैं और यहाँ से ही जाते हैं। पर मेन समस्या ये है कि बरसात के दिनों में बहुत समस्या आती है। तो इसी कारण हमारे को मेन समस्या ये आती है कि मेन जो मटी सटली है वहाँ का मेन रोड से और साजनपुर आना जाना थोड़ा सा कठिनाई हो जाता है बरसात के दिनों में। और ये जो गांव है वो पुराने ज़माने का ही गांव है और पुराने ज़माने में इसका जो साजनपुर गांव है वो चारों तरफ गुजरात से घिरा हुआ है। और ये इस गांव में मध्य प्रदेश का शासन है और पहले राजा राजवाड़ा द्वारा भी क्या मालूम किस तरह से हुआ था। वो बोल रहे थे, पहले के लोग इस तरह से बोल रहे थे कि एक साधु लोग यहाँ पर रहते थे और साधु लोग जो चाहे दूसरे गांव में नहीं जाते थे और दूसरे गांव वाले को आने भी नहीं देते थे। तो इसी गांव से वो साधु लोग कुछ दूसरे गांव में जाने के लिए राजा जो एमपी मध्य प्रदेश से जो है कठीवाड़ा का राजा है उससे कुछ कर्जा लिया था। तो कर्जा लेने के बाद फिर वो वापस कर्जा लेके फिर इस गांव से दूसरे गांव गए थे तो वहां से वापस आए ही नहीं। तो फिर कर्जा के हिसाब से इस गांव को कठीवाड़ा जो कठीवाड़ा का राजा था उसने इस गांव को उसके हिस्से में ले लिया था। तब से हमारा जो साजनपुर है वो मध्य प्रदेश में उसी में जुड़ा हुआ है। और हम आज भी मध्य प्रदेश शासन जो भी दे रही है वो उसी कार्यभार से हम चल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में है, लाइट के में है, वो लाइट के जैसे पानी है, लाइट है, और कुछ भी गांव में जो भी है रोड है, आरसीसी रोड है, जो भी है वो सरकार योजना देती है, उसका हम लाभ भी उठा रहे हैं और उसका सहयोग भी दे रहे हैं। गुजरात चुनाव आ रहा है गुजरात में, तो यहाँ से जो आजू बाजू के गांव है जो वो गुजरात में आते हैं, हाँ, तो आप क्या कहेंगे? हमारा कहना तो ये है कि जैसे गुजरात से हमारा को वैसा कोई प्रभाव नहीं है। हमारा जो एमपी मध्य प्रदेश है वो उससे है और गुजरात में तो आसपास यहाँ से जाएंगे, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ से ही जाते हैं, नेता लोग आते हैं। आसपास के गांव जो गुजरात में घिरे हुए हैं तो यहाँ से निकलेंगे तो हम उससे कोई हमारा प्रभाव तो नहीं है। पर हम ये चाहेंगे कि जो गुजरात सीमा के अंदर गुजरात सीमा में आता है रोड वो ज़रूर पक्का करें, सड़क पक्का हो, हमारे को आना जाना दिक्कत नहीं हो। हम तो दोनों से ही अच्छे हैं, पर जैसे कि गुजरात में जो रोड पक्का हुआ नहीं, आज तक पुलिया भी नहीं बने हैं, तो बरसात के दिनों में दिक्कत आती है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि वो ध्यान दे और हमारा आना जाना हो, सभी लोगों का आना जाना है वो अच्छी हमारी समस्या हो वो सुलझाए। हमारे यही परेशानी है कि मिट्टी उड़ने के वजह से खेतों में भी कोई फसल नहीं हो पाती है। इसके लिए हमारे को रोड की सुविधा ज़रूर दोनों सरकार मिलजुल के बनाइए, यही बोलना चाहती हूँ। और यहाँ से हमारे गांव से जाना पड़ता है गाड़ी बारिश के दिनों में गाड़ी भी नहीं जा पाती है और पैदल जाए तो भी बहुत सारे खड्डे कीचड़ बहुत सारे हो जाते हैं। इसके लिए अच्छे से रोड बनाए और यहाँ से हमारे गुजरात कितना घूम के जाना पड़ता, दियावाट और कोलू, कटरवाट, कोल्याथर इधर घूम के जाना पड़ता है। इसके लिए हमारे को रोड की सुविधा ज़रूर दोनों सरकार मिल के बनाइए। हाँ, जब कोई बीमार पड़ता है या तो फिर कोई बीमारी हो जाती है उसके लिए हमारे को पैदल जाना पड़ता है और झोला बना के लेके जाना पड़ता है 4 किलोमीटर दूरी। गार्डन साहेब એટલે ખરાબ बहुत છે સાહેબ, મોટી સડલીનો। તો આ રસ્તો કઈ જાય? સાજનપુર साजनपुर से गुजराती बोले कि हिंदी बोले बताइए? राठू बोले साहब। रास्ता तो बहुत ही खराब है ना, इधर आजू बाजू सब गुजरात लगता है ना, बीच में एक ही गांव है। बहुत सा बारिश के मौसम में इतना दिक्कत होता है, एम्बुलेंस ना आ पाती है, ना गाड़ी 4 व्हीलर कोई भी नहीं आता है। हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है फुल। रास्ता क्यों नहीं बन रहा? रास्ता प्रशासन क्या मालूम क्या करती है, कोई गवर्नमेंट आती है लेकिन काम नहीं करती इधर। तो गुजरात में चुनाव है और अभी आप वोट लेने के लिए आएंगे, तो आपको तो वोट देना नहीं है, लेकिन वोट तो हमको देना नहीं है लेकिन करना तो चाहिए ना काम। कोई भी गवर्नमेंट आएगी कुछ करने के लिए आएगी ना, तो करना चाहिए। कोई भी अच्छा काम करने के लिए आएगी ना, लोगों से वोट लेगी तो काम ही तो करेगी। तो
और तुम्हारा जो गांव है वो मध्य प्रदेश में और आजू बाजू के जो गांव है गुजरात में है। है। तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा और क्या आपने प्रशासन को बताया क्या गुजरात और एमपी को? बहुत बार बताया है, ग्राम सभा होती है उसमें बताया है, सब जगह।